1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 10 चैप्टर 1 वर्स से 31 वर्स, नंबर्स 11 चैप्टर 12 चैप्टर 13 चैप्टर। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 वचन से 31 वचन, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 12 अध्याय 13 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई का सामना करा, झूठ की ताकत तोड़ दे। झूठ धोखा है खुदा परमेश्वर, उसमें कोई सच्चाई नहीं है खुदा परमेश्वर। झूठ के अंदर डर है, झूठ के अंदर पिता परमेश्वर डाउट्स है, फियर्स है। पिता परमेश्वर झूठ कभी भी आगे नहीं जाना है। पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई झूठ ने नहीं करनी है, हमारी अगुवाई सच्चाई ने करनी है। पिता परमेश्वर सत्य का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करे और सारा झूठ हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए। हर प्रकार के शैतानी काम हमारे सामने एक्सपोज हो जाए और गिर जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें सच्चाई के साथ कन्फ्रंट कर, नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। मार्क 10 चैप्टर 1 वर्स से 31 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। ऑफ डिवोर्समेंट, क्राइस्ट ब्लेसेथ चिल्ड्रन, टेलeth the danger of riches, blind Bartimaeus receiveth sight. First verse say, and he arose from thence and cometh into the coasts of Judea by the farther side of Jordan, and the people resort unto him again, and as he was wont, he taught them again. And the Pharisees came to him and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife, tempting him? And he answered and said unto them, What did Moses command you? And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement and to put her away. And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept. But from the beginning of the creation God made them male and female. For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. So then they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. And in the house his disciples asked him again of the same matter. And he said unto them, Whosoever shall put away his wife and marry another committeth adultery against her. And if a woman shall put away her husband and be married to another, she committeth adultery. And they brought young children to him, that he should touch them. And his disciples rebuked those that brought them. But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them. And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? Here is none good but one, that is God. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor thy father and mother. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross, and
follow me? And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. And Jesus looked round about, and said unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who then can be saved? And Jesus, looking upon them, said, With men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible. Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel's, but he shall receive 100-fold now in this time, houses and brethren and sisters and mothers, children and lands, with persecutions, and in the world to come eternal life. But many that are first shall be last, and the last first. मरकुस 10 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। पहले वचन से 31 वचन तक पढ़ेंगे। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। पहले वचन से, फिर वह वहाँ से उठकर यहूदियों की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। बालकों को आशीर्वाद। 13 वचन से आगे, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उन्हें आशीष दी। धनी युवक और अनंत जीवन। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा,
और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हमें इन वचनों में फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।